Okay. Just there's a small problem regarding the internet connectivity issue. Okay, done now. So sharing a numerical problem with you statement, we have to solve that. मॉड्यूल नंबर 3 से वो रिलेट करता है आपका, ठीक है। सो थोड़ी देर में आपके साथ अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट वेट। Just 1 minute. I'll share the screen. Sharing now. हाँ जी बच्चे, स्क्रीन आ गया सभी के सामने। अच्छा, अब कंफर्म करना इसकी स्क्रीन नजर आ रही है। Because of the internet connectivity issue, the call has been dropped, so I have rejoined the call again. ठीक है जी, अब आ रहा है बच्चे, स्क्रीन सामने नजर आ रहा है जी। वर्ड की फाइल मैंने ओपन की है, न्यूमेरिकल सोलर एनर्जी। Okay, the first numerical that I am going to give you to solve is calculate the angle made by beam radiation with the normal to a flat plate collector on December 1 at 0900 hours local apparent time. The collector is located in New Delhi,
28 degree 35 minutes north, 77 degree 12 minutes east. Sorry. So this is a degree. I made it up. Okay. This is the location and is tilted at an angle of 36 degree with the horizontal and is pointing due south. So this is the question. You have to find out the angle made by the beam radiation. In other words, if I give you that, आपने find out क्या करना है? आपने find out करना है cos of theta. You have to find out the cos of theta. That is this one. You have to find out the cos of theta, and after finding out the, just a second. Somebody is there in the copy. Finding out the cos theta, find theta only. तो आपने क्या करना है, पहले cos थीटा फाइंड आउट करना है. cos थीटा, कंप्यूटेशन ऑफ cos थीटा के नोट्स आपके ऑलरेडी मैंने सर्कुलेट किए हुए हैं. ठीक है. फाइंड आउट द इक्वेशन विच विल बी यूटिलाइज्ड इन दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल as per the given conditions. The given conditions are like is pointing south, due south. So certain conditions, while we have computed the cos of theta, we have taken certain conditions. If the collector is pointing due south, if the collector is with the is made some angle with the horizontal, what type of which equation we will be going to utilize for the computation of the cos of theta. Just refer that topic, find out the equation and put the values of various angles given in the question in that equation in order to find out the value of cos theta. Hurry up, please do it. In the meanwhile, I'll open the notes with you also in front of you so that you can see what we have covered in the module number 3.
Yes, students, sharing the notes with you also, so that you can see which equation we will have to utilize in order to find out this one. So I think so screen is shared with you. You may be able to see the screen also. So this is the value of this is the equation, general equation showing the relation of various angles with respect to finding out the value of the computation of cos of theta. So cos of theta is equal to sine phi, sine delta, cos beta plus cos delta, cos gamma, cos omega, sine beta. I think so you all remember that what all these angles represent. Phi किस चीज को represent करता है, delta किस चीज को represent करता है, beta किस चीज को represent करता है. I assume that you all know what are these angles, what are the names of these angles. Okay, so all these angles are being utilized in order to compute the cos of theta. Now using this equation number 3.4, as earlier we have 4 different cases. For a vertical surface, beta angle will be equal to 90 degree. अगर horizontal surface है, beta will be equal to 0 degree. अगर आपका northern hemisphere में sun है and it is towards south, then gamma is equal to 0 degree. So as you can see here, the condition is given last that n is pointing due south. This means direction is towards south. Therefore, gamma should be equal to 0, and we are going to use this relation for the computation of cos of theta. Okay, so this relation we will be going to utilize. So all of you please note down this equation. Please note down this equation. Cos theta is equal to sine delta, sine of phi minus beta plus cos delta, cos of omega, cos of phi minus beta. Okay, इक्वेशन बच्चे नोट डाउन कर लिए सभी ने, प्लीज रिस्पॉन्ड. In order to compute the cos of theta, you have to use this equation. ये वाली इक्वेशन आप यूज करोगे. cos theta is equal to sin delta, sin phi minus beta plus cos delta, cos omega, cos phi minus beta. Then I will let you know what are the these different angles are. इन different angles को आपने कैसे कैलकुलेट करना है. ठीक है, ऑल्दो सभी एंगल्स आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है. ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर आपको एंगल्स गिवन है, वहीं से आपने जस्ट वैल्यूज लेनी है और यहाँ पे पुट डाउन करनी है. वन एंगल यू हैव टू कैलकुलेट, एक एंगल आपने कैलकुलेट करना है, दैट इज एंगल डेल्टा, द एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन. एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद है किसी को एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन का फॉर्मूला क्या है? It is equal to 23 minus 45, 23 minus 45 sine of 360 by 365 into 284 plus n. n is equal to the number of days counting from the January 1. और यहाँ पे हमें डे दिया हुआ दिसंबर 1 को हमने कैलकुलेट करना है. सो जनवरी 1 से दिसंबर 1 के बीच में कितने डेज होते हैं उनको आप कैलकुलेट कीजिए, विच इज इक्वल टू 335. Okay, so you can find out the value of delta, which is equal to 23.45 sine of 360 divided by 365. Multiply whole the term with the 284 plus 335. Find out the value of the delta, please. Hurry up. And please respond to, so that I should come to know that whether you are listening or not, or whether you are attempting the numerical or not. Because as your syllabus has been completed, so now in the coming days we will only have discussion related to the subject material and try to solve as many numericals as we can do from the different topics. For that I need your cooperation.
I need your support. I need your response. Without your response, I may not be able to do the same what I can do with your responses. Still no response from your side. Okay, I am assuming that you are solving the numerical. So kindly, after computing the value of delta, tell me what will be the value of delta. Delta का formula मैंने अभी आपको बताया. I'm repeating again. 23.45 sine of 360 by 365. Okay, I will write down here also in the word file. मैं यहाँ पे भी आपको लिख देता हूँ. ठीक है. सब आपने निकालना क्या है, डेल्टा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. सो डेल्टा इज इक्वल टू दिस वन. डेल्टा डेल्टा चलिए डेल्टा दूसरा बन के कोई बात नहीं. ठीक है जी. अब डेल्टा आपका 23.45 साइन ऑफ 360 डिवाइडेड बाय 365 ब्रैकेट 284 प्लस 335. You have to do this. So this is again in the bracket. चलो इसको सॉल्व करना है आपने. इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा. डेल्टा को मैं चेंज करके यहाँ पे फिर से वही कर देता हूँ. ये वाला डेल्टा एंगल, ये वाले डेल्टा एंगल की वैल्यू को फाइंड आउट करके मुझे आंसर बताइए प्लीज. Please tell me what is the value of this delta. जब आप फाइंड आउट कर लोगे मुझे बता देना इस डेल्टा की वैल्यू कितनी है.
Yes, please tell me what will be the value of the angle delta. This should not be take so much time. वो तो हो जाना चाहिए बच्चे अभी तक कैलकुलेट कितना वैल्यू आ रहा है एंगल डेल्टा का. Only then we will be able to compute the cos of theta, or we'll see any other values that we can identify, or we have to calculate in order to compute the cos of theta, so that we can find out final angle made by the beam radiation with a normal to a flat plate collector as per the given conditions. You are responding in messages. You can have to see the conversation box. Where are you messaging, guys? Reply to you, but are you writing in the message conversation box, chat box में? आप मीटिंग के चैट बॉक्स में आंसर्स लिख रहे हैं और समथिंग कहाँ पे लिख रहे हैं बच्चे? आप एक्टिविटी के अंदर जाके कर रहे हैं, कहाँ पे काम मैसेजेस कर रहे हैं आप? Because I may not be able to see the any answers posted in the chat box. मीटिंग चैट में तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा बच्चे, अगर आपने कुछ पोस्ट किया है. I'm not be able to see, but certainly on my cell phone I am receiving your messages, but will not be able to guess where they are. कहाँ पे आप कर रहे हैं? Okay, you are posting in the channel, so I have to visit the channel now. Teams channel, post. There is nothing also. There is also there is nothing. So where you are guys posting? As per cell phone, you have Vanshika has posted 20.35. But where it has posted as may not be able to see on the laptop screen. So check कोई भी अगर आंसर है तो you can either Sir, I'm not unmute sure. yourself. Sir, I'm not sure, but I calculated as 20.359. हाँ फाइन. आप अनम्यूट करके बच्चे बोल के बता दीजिए, ऐसे मुझे फाइनल ढूंढना डिफिकल्ट हो जाता है कहाँ पे आंसर है. ठीक है, दैट वुड बेटर. 20.35. ओके, एनीबडी एल्स? किसी और ने कैलकुलेट किया है? इट शुड कम इन नेगेटिव. आंसर नेगेटिव में आएगा, इतना आपको बता देता हूँ. ठीक है, नियर इतना ही होगा, 20 के आसपास होगा, बट इट शुड बी नेगेटिव. डेल्टा इज नेगेटिव. सर -22.107. Yeah, -22.107 will be the right value, because मैंने भी यही कैलकुलेट किया है. ठीक है, -22.107 और 108. ठीक है, दिस वुड बी द आंसर. और 3 डेसिमल प्लेसेस तक हम जनरली नहीं काउंट करते हैं, सो यू कैन टेक इट एज -22.11 डिग्री. -22.11 डिग्री. So the delta is equal to -22.11 degree. ठीक है जी. नाउ शेयर कर सकते हैं और फिर से वहीं पे चलते हैं, नोट्स ओपन करते हैं. ओके, सो इन दिस इक्वेशन हमने डेल्टा कैलकुलेट कर लिया है. फाई हमारा लैटिट्यूड एंगल होता है, बीटा हमारा
टिल्टेड एंगल होता है, जो एंगल ऑफ स्लोप होता है, ठीक है जी। ओमेगा हमारा आर एंगल होता है। बाकी चीजें हमें पता है, फाई और बीटा हो गया, ठीक है जी। बीटा हम क्वेश्चन में अगर आप जाएंगे फिर से क्वेश्चन में देखेंगे, सो टिल्टेड एंगल कितना है, कितने एंगल पे टिल्ट है, 36 डिग्री पे। सो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 डिग्री। सो डेल्टा और बीटा हमने फाइंड आउट कर लिया। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ फाई, फाई की वैल्यू क्या होगी, लैटिट्यूड एंगल। क्वेश्चन में से मुझे बताइए फाई की वैल्यू क्या होगी। I'll share the question with you. That's it. For that you have to compute convert this 35 into the degree। 35 को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। So 35 को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए and then you will be able to find out the value of the total this, ठीक है जी। सो पॉइंटों में आपके पास वैल्यू आ जाएगी। 28 डिग्री तो है ये फाई की वैल्यू, 28.35 डिग्री, 35 मिनट्स इज गिवन। 35 को आप कन्वर्ट कर लीजिए इनटू द डिग्रीज, so it would be 0.58 means 28.58 डिग्री, ठीक है। 28.5 कितना आ रहा है, 58, 28.58। सो बीटा की वैल्यू है आपके पास, यहाँ से मैं फिर से एक बार इंसर्ट करके सिंबल ले लेता हूँ। बीटा, बीटा वैल्यू इज सॉरी value of beta is equal to 36 डिग्री, ओके। सो नेक्स्ट अगली वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अगली वैल्यू मैंने आपको बताया 5। सो 5 की वैल्यू होगी, यहाँ से मैं 5 का सिंबल भी ले लेता हूँ। बाहर ही गिवन हो तो वेल एंड गुड है, तो इसको मैं 5 मान लेता हूँ। ये मेरा 5 का सिंबल है। दिस इज इक्वल टू 28.58 डिग्री, ओके। चलिए ये भी वैल्यू मेरे पास आ गई है। 5 की वैल्यू भी है 28.58। मिनट्स को कन्वर्ट करते हैं जब हम डिग्री में, डिवाइडेड बाय 60, उसको 60 से डिवाइड कर देना, आपके मिनट्स डिग्री में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो वो 0.58 आया, इसका मतलब 28.58 डिग्री आपका 5 बन जाएगा। बीटा भी आपका आ गया है, ये बीटा फिर से बी में चेंज हो गया है, इसको मैं यहाँ से लेके आपका चेंज कर देता हूँ सिंबल में, ये लीजिए। सो बीटा आपका 36 डिग्री है, डेल्टा आपका -22.11 डिग्री है, and omega. Now the thing is omega. How you will find out the value of omega? Omega का भी symbol ले लें, ये रहा omega. What would be the value of this? ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, आर एंगल जिसको हम बोलते हैं, विच इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द लोकल एपरेंट टाइम। एंड यू कैन सी इन द क्वेश्चन at 9 hour they have told us to find out the value of on this number 1 at 9 hour. So what would be the value of omega at 9 hour? हाँ जी बताइए बच्चे, कितना वैल्यू हो सकता है। मैंने आपको आर एंगल बताया था, आर एंगल आपका क्या होता है, इट इज बेसिकली अ मेजर ऑफ टाइम, एंगुलर मेजर ऑफ टाइम होता है। एंगल के बीच में हम टाइम को मेजर करते हैं, विच इज इक्वल टू 15 डिग्री पर आर, 15 डिग्री पर आर के विद रिस्पेक्ट एक होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू -180 डिग्री से लेके +180 डिग्री के बीच में वेरी करती है या लाई करती है। और इसको हम मेजर करने के लिए नून से शुरू होते हैं, ठीक है, बेस्ड अपॉन द लोकल एपरेंट टाइम, जिसको हम पॉजिटिव मानते हैं मॉर्निंग में, नेगेटिव मानते हैं आफ्टरनून में। ओके, पॉजिटिव इन द मॉर्निंग एंड नेगेटिव इन द आफ्टरनून।
एट 9 आवर्स का मतलब क्या हुआ? वी आर फाइंडिंग इट आउट इन द 9 AM। 9 आवर का मतलब क्या होता है? 9 AM। ओके, 9 आवर्स इज इक्वल टू मच 9 AM इन आवर। अगर पीरियड में हम कैलकुलेट करते हैं 9, 10, 11, 12, देन 13, 14, 15, 16, 17, इस तरीके से हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। 24 आवर फॉर्मेट जो होता है हमारा टाइम पीरियड का, 24 आवर फॉर्मेट उसी चीज़ को बोलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 24। ठीक है, सो 9 आवर मीन्स इट इज़ मॉर्निंग 9 AM। मॉर्निंग 9 AM को ये डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, और मॉर्निंग में हमारा जो आर एंगल होता है दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। एंड टोटल हाफ सर्कल आपका मीन्स 180 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा। 15 घंटे का एक एंगल होता है, 15 डिग्री का एक 1 आवर हो गया आपका कॉरस्पॉन्डिंगली। और 9 से लेके 12 तक हमारे कितने आवर्स होते हैं? 12 से लेके 9 तक कितने डिग्री बना आपका? 45 डिग्री, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट इट फ्रॉम द 12 नून। सो 12 नून से आपका 9 के बीच में कितना एंगल बना? 45 डिग्री का। सो देयरफॉर इट इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब ये वैल्यूज आप इस इक्वेशन में कंप्यूट कर दीजिए। डेल्टा -22.11 डिग्री, फाई 28.58 डिग्री, बीटा 36 डिग्री, ओमेगा 45 डिग्री, डेल्टा -22.11 डिग्री, फाई अगेन 28.58 और बीटा आपका 36 डिग्री। जो भी कैलकुलेशन होगी कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, देन थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ दैट। फाइनल वैल्यू आपको थीटा का ऑब्टेन हो जाएगा। सो आपका न्यूमेरिकल वहां पे कंक्लूड हो जाएगा। क्लियर? सो यू हैव टू रिमेंबर दिस जनरलाइज्ड इक्वेशन। आपने क्या करना है? आपने ये सारे फॉर्मूले रिमेंबर नहीं करने, मैंने आपको तब भी बताया था। यू हैव टू रिमेंबर दिस जनरल इक्वेशन। ये जनरल इक्वेशन आपने रिमेंबर करनी है। एंड फॉर वेरियस केसेस यू कैन इजीली डिड्यूस दीज फॉर्मूलाज और एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस। ठीक है, आपको पता है वर्टिकल सरफेस के लिए बीटा टिल्ट एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। हॉरिजॉन्टल सरफेस है, सो थीटा पैरेलल सरफेस हो गया बिल्कुल, तो थीटा टिल्ट तो कुछ होगा ही नहीं, मींस बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर आपका ड्यू साउथ है तो गामा आपका 0 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अगर वर्टिकल सरफेस ड्यू साउथ है देन दो एंगल आपके 90 डिग्री हो जाएगा बीटा और गामा 0 हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंगली दिस विल बी योर कॉस थीटा। बट आपने यही इक्वेशन रिमेंबर करनी है, ये ऊपर बेसिक 3.4, बाकी तो आपने सिर्फ डिड्यूस करनी है फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके, clear? So you can find out the value of now cos theta from this particular equation. I have given you all the values of the various angles which has to be utilized in that equation. सारे angles की value आपको बता दी है. Put these values of in that equation and find out the answer of cos theta. Cos theta नहीं निकालना है, हमने निकालना theta है। Cos theta आ जाएगा तो theta is equal to cos inverse of the find value जो आपने find की है। ठीक है, calculate की है। Got it?